بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. فائنینشیل اکاؤنٹنگ BBA 3 ہماری انڈر ڈسکشن جو چپٹر تھی وہ پارٹنرشپ اکاؤنٹس، جس میں ہم نے ایڈمیشن آف نیو پارٹنر اور پھر ایڈمیشن آف نیو پارٹنر میں ہم نے جو مختلف میٹرز اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ انڈر ایڈمیشن آف پارٹنر ڈسکس کرنے تھے وہ ہم پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں ریکارڈنگ دا کنٹریبیوشن آف نیو پارٹنر، سیٹلمنٹ آف نیو پروفٹ شیئرنگ ریشو، ٹریٹمنٹ آف گڈ ول اور ری ویلیویشن آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز شامل تھی. اب اس سلسلے میں ہم ایڈمیشن آف پارٹنرز کی یعنی ان میٹرز کو ہم پریکٹیکل ایکسرسائز میں آج ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح ریکارڈنگ دا کنٹریبیوشن ہوتی ہے، کس طرح سیٹلمنٹ آف نیو پروفٹ شیئرنگ ریشو ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ آف گڈ ول ہوتی ہے. تو یہ ان ایکسرسائز میں ہم ڈسکس کریں گے، اور ری ویلیویشن آف ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے لیے ہم اس کو بعد میں ایکسرسائز میں ڈسکس کریں گے. آج ہم سالو کرتے ہیں ایکسرسائز 1 and 2 اور اس میں ریلیٹڈ ایشوز جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو چلتے ہیں ایکسرسائز نمبر 1 کی طرف. ایڈمیشن آف پارٹنر. ایکسرسائز نمبر 1. اکبر اینڈ قاسم were partner in a business sharing loss, profit and loss in the ratio of 3:1 respectively. اکبر اور قاسم دو پارٹنرز تھے بزنس میں، ان کے درمیان جو پرافٹ اینڈ لاس شیئرنگ ریشو تھی وہ 3:1 تھی، مطلب 3/4 1/4. They admit Hashim is a partner for 1/5 interest. اس نے ہاشم کو اپنا پارٹنر بنایا اور اسے بزنس میں 1/5 انٹرسٹ دیا، مطلب اسے 1/5 حصہ دیا. Who pays Aris 30,000 as capital؟ جس کے لیے وہ 30,000 as a capital انویسٹ کرے گا. The goodwill of the firm is valued at Aris 48,000. اور فرم کا جو گڈ ول ہے یعنی پوری پارٹنرشپ فرم کا گڈ ول، اس کی ویلیو معلوم ہو گئی ہے، وہ ہے 48,000. 48,000 ٹوٹل ویلیو آف دا گڈ ول ہے. ریکوائرڈ ہم سے ہیں پریپیئر دا جرنل انٹریز انڈر ایچ آف دا فالوئنگ کیس سیپریٹلی. ہم نے جرنل انٹریز پاس کرنی ہے، جس میں پہلی کیس ہے ہاشم برنگ گڈ ول ان کیش. اگر ہاشم گڈ ول جو اس کے حصے کا بنتا ہے وہ کیش میں لاتا ہے تو پھر کیا انٹریز ہوگی. اور دوسری کیس ہے ہی از انیبل ٹو برنگ کیش فار گڈ ول. اور اگر وہ گڈ ول نہیں لا سکتا کیش کی صورت میں، اینڈ ہینس اٹ از ریزڈ ان دا بکس، اور پھر اس گڈ ول کو ہم نے بکس میں ریز کرنا ہو، تو اس کے لیے ہم ان دونوں کیسز کی ہم سیپریٹ جرنل انٹریز پاس کریں گے. ایک ہاشم کیش گڈ ول لاتا ہے اور دوسرے میں وہ کیش گڈ ول نہیں لاتا. تو اس ایکسرسائز میں ہم دو میٹرز ڈیل کریں گے. ایک ریکارڈنگ دا کنٹریبیوشن آف نیو پارٹنر، جو کہ ہاشم ہے وہ 30,000 ایز کیپٹل لاتا ہے، اس کی انٹری کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ٹریٹمنٹ آف گڈ ول کریں گے. تو اس کے لیے ہم جاتے ہیں اپنی جرنل انٹریز پہ. یہ ہمارے ساتھ جرنل ہیں
اور اس میں ہم پہلی کیس جو کہ تھا کہ ہاشم برنگ گڈ ول ان کیش، اس کے متعلق ہم جرنل انٹریز پاس کریں گے. تو ہمارے پاس پہلی انٹری ہوگی انٹری نمبر 1 ریکارڈنگ دا کنٹریبیوشن کے لیے. تو ہم انٹری کریں گے کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ 30,000 سے اور کیپٹل اکاؤنٹ کریڈٹ کیپٹل ہاشم کریڈٹ 30,000 سے. تو یہ ہماری ریکارڈنگ دا کنٹریبیوشن کی انٹری ہوگی کہ ہاشم کنٹریبیوٹیڈ کیپٹل کیش از کیپٹل. دوسری انٹری ہماری ہوگی گڈ ول کی، جو کہ اس میں دوسرا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ گڈ ول کا ہے. تو گڈ ول کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ گڈ ول لاتا ہے کیش میں. تو ہم انٹری کریں گے کیش ڈیبٹ اور یہ کیش ہمیں ملتی ہے گڈ ول کی وجہ سے. تو انٹری ہوگی گڈ ول اکاؤنٹ کریڈٹ. اب یہاں پہ اماؤنٹ گڈ ول کی واضح نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کوشچن میں دیکھیں، کوشچن میں کہا تھا کہ دا گڈ ول آف دا فرم از ویلیوڈ ایٹ ₹48,000. اب فرم کا ٹوٹل گڈ ول 48,000 ہے اور ہاشم برنگ گڈ ول ان کیش، ہاشم اپنے حصے کا گڈ ول کیش میں لاتا ہے. تو لہٰذا اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارے پاس ٹوٹل گڈ ول آف دا فرم 48,000 ہے. یہ ہم ایز اے ورکنگ کرتا ہوں اور اس میں ہاشم جو کہ ایک نیا پارٹنر آ رہا ہے اور ان کو ہم بزنس میں 1/5 انٹرسٹ دے رہے ہیں. تو اس حساب سے اس کا گڈ ول بنتا ہے 48,000 ضرب 1/5 کے حساب سے. تو 48,000 کو ہم 5 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہاشم کے حصے کا گڈ ول ہوگا اور یہ بنتا ہے 48,000 ڈیوائڈ بائی 5، یہ بنتا ہے 9,600. تو لہٰذا 9,600 گڈ ول جو ہے ٹوٹل گڈ ول میں یہ ہاشم کے حصے کا بنتا ہے. یعنی ہاشم یعنی فرم کا ٹوٹل گڈ ول 48 بنتا ہے، لیکن ہاشم کو فرم میں حصہ ملتا ہے، انٹرسٹ ملتا ہے 1/5. تو 1/5 کے حساب سے اس کا گڈ ول بنے گا 9,600. تو لہٰذا ہم انٹری کریں گے کیش ڈیبٹ 9,600 اور گڈ ول اکاؤنٹ کریڈٹ 9,600. بعض اوقات یہ گڈ ول اماؤنٹ ہمیں گیون ہوگی ہماری کوشچن میں کہ اتنی اماؤنٹ آف گڈ ول وہ لا رہا ہے، تو پھر ہم نے اتنی کی انٹری کرنی ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ ہمیں ٹوٹل گڈ ول گیون تھی، ہم نے اس میں سے ہاشم کا حصہ معلوم کیا اور اس نے ادائیگی کیش میں کی. جب یہ گڈ ول وہ ہمیں کیش میں ادا کرتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس کی تیسری انٹری ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں یہاں پتا ہے کہ یہ گڈ ول پارٹنر نے بزنس سے وڈرا نہیں کیا اور یہ ہمارے بزنس میں ریٹین ہوا. تو اگر آپ گڈ ول کے ٹریٹمنٹ میں دیکھیں تو اس میں پہلا کیس تھا کہ when the partner bring his share of goodwill in cash and that amount is retained in the business، اور پھر وہ اماؤنٹ بزنس میں ریٹین ہو جاتی ہے، مطلب رہ جاتی ہے. تو یہ ہمارا وہ کیس ہے کہ کیش ڈیبٹ ہو گیا 9,600 سے، گڈ ول کریڈٹ ہوا 9,600 سے. اب یہ گڈ ول ہم اولڈ پارٹنرز میں تقسیم کریں گے. تو انٹری کریں گے گڈ ول اکاؤنٹ ڈیبٹ، جتنی اماؤنٹ سے یہ ہمارے پاس کریڈٹ تھا 9,600، اور یہ تقسیم ہوگا اولڈ پارٹنر میں، اور اولڈ پارٹنر ہے کیپٹل اکبر، اور دوسرا ہے ہمارے پاس کیپٹل قاسم. یعنی جتنی گڈ ول نیو پارٹنر لاتا ہے وہ گڈ ول ہم نے اولڈ پارٹنر میں ان کی سیکریفائس ریشو سے تقسیم کرنی ہے. یہاں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب گڈ ول کیش میں آتا ہے تو گڈ ول جب آپ پارٹنر کے درمیان تقسیم کرو گے تو وہ گڈ ول آپ اولڈ پارٹنر کے درمیان تقسیم کرو گی آن دا بیسس آف دا ریشو آف سیکریفائس. اب چونکہ ہمیں تو گڈ ول اماؤنٹ معلوم تھی 9,600، لیکن یہ اکبر اور قاسم میں کس ریشو سے تقسیم ہوگی، تو اس کے لیے ہم نے معلوم کرنی ہے سیکریفائس ریشو.
अब सेक्रीफाइस रेशो किस तरह मालूम होगी? सेक्रीफाइस रेशो बराबर है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी आप ओल्ड रेशो से न्यू रेशो माइनस करेंगे। तो अकबर की और कासिम की, ये हमारे पास सपोज न्यू रेशो गिवन नहीं है, हम इस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे। यानी यहां हमारा फार्मूला है कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब अकबर की ओल्ड रेशो हमें गिवन थी, अगर आप क्वेश्चन को देखें 3:1:3, अकबर और कासिम का जो रेशो था पहले वो 3:1 थी, तो 3:1 के हिसाब से 3/4 और 1/4 बनता है। माइनस करनी है हमने न्यू रेशो, अब हमारे पास न्यू रेशो क्वेश्चन में नहीं था, यानी क्वेश्चन में अगर आप देखिए दोबारा हम जाके देखते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 3:1 जो ओल्ड रेशो थी वो गिवन थी, और साथ ये 1/5 इंटरेस्ट जो न्यू पार्टनर का है वो गिवन था। बाकी हमारे पास कासिम और अकबर की नई रेशो मौजूद नहीं थी। तो लिहाजा सेक्रीफाइस रेशो के लिए हमने क्या मालूम करनी है? न्यू रेशो मालूम करनी है। अब न्यू रेशो का केस यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, और ये हमारी हो गई दूसरी ट्रीटमेंट सेटलमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी हमने अब इन पार्टनर के लिए न्यू शेयरिंग रेशो भी मालूम करनी है। न्यू रेशो किस तरह मालूम करेंगे? ये उसका तरीकेकार है कि हम लेट सपोज करेंगे कि टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज 1, फिर उस 1 में से हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर, शेयर गिवन टू न्यू पार्टनर, यानी हम माइनस करेंगे शेयर गिवन टू हाशिम। तो 1 - 1/5, यानी 1 हमने सपोज किया, फिर उस 1 में से हमने 1/5 जो कि नए पार्टनर की शेयर है वो माइनस की, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया, वो हो गया 4/5। यानी अगर बिजनेस की टोटल हिस्से 5 हो और उसमें एक हिस्सा हाशिम को मिलता है, तो बाकी 4/5 रह गई। अब 4/5 किसके रह गई? ये कासिम और अकबर के दरमियान तकसीम होगी, यानी अकबर और कासिम के दरमियान वो बाकी 4/5 हिस्से रिमाइंडर जो है वो तकसीम होगी। किस तरह तकसीम होगी? हम 4/5 और 4/5 अकबर और कासिम के ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4/5 हमारी रिमाइंडर है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3/4 जो कि अकबर का पुराना रेशो है, ओल्ड रेशो है। इस तरह कासिम की 4/5 जो कि हमारी रिमाइंडर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी ओल्ड रेशो से, तो हमारे पास इस तरह ये आ गया 4×3 = 12 और 5×4 = 20, तो 12/20 इसका बनता है 4/20। अब हाशिम जो कि हमारा नया पार्टनर है उसको हमने 1/5 रेशो गिवन देनी थी, तो 1/5 हमारे पास बराबर है 4/20 की, यानी अगर आप 1/5 को देखें तो ये 4/20 के बराबर है। यानी हमारे पास टोटल हिस्से बन गई 20 में 12 अकबर ले रहा है, 20 में 4 कासिम ले रहा है, तो 12/4 16, बाकी रह गए 4, तो 4 किसके होंगे? हाशिम के होंगे। तो लिहाजा 1/5 या 4/20, यानी अगर 4/20 को हम मजीद उसकी दोबारा फैक्टराइजेशन करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये 1/5 के बराबर होगा। अब इसकी हमारी जो न्यू रेशो बनती है वो 12/4 बनती है। 12/4 ये टोटल बनती है 20। अब इसको हम मजीद फैक्टराइज करते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारी बनती है 4 पे डिवाइड होती है 9 4 3 12, 4 1 4 और 4 1 4, यानी ये मजीद सिंप्लीफाई हो गई, हमारे पास 3/1 बन गई। तो इसका मतलब 3/5, 1/5 और 1/5, ये हमारे पास न्यू रेशो है। अब ये न्यू रेशो हम ओल्ड रेशो से माइनस करेंगे 3/5, तो ये हमारे पास आएगा अकबर की सेक्रीफाइस रेशो, यानी 3/5 हमने न्यू रेशो में मालूम की, जो कि हम अकबर की ओल्ड रेशो से माइनस करेंगे। तो जब ओल्ड रेशो से इसको माइनस करना होगा तो इसका हम एलसीएम लेंगे, इसको हम ज़ुज़ात अकल कहते हैं। तो लिहाजा एलसीएम लेने से हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, तो ये टोटल इसका 20 होता है, यानी कॉमन फैक्टर लेंगे कि 5 और 4 दोनों पे तकसीम होता है, तो 20 है। 20 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा, 5 3 15, तो हमारे पास 15 माइनस और 4 3 12 12, तो ये इज इक्वल टू होगा 3 का। तो ये आपने इस तरह मैथ्स की रूल से करनी है, तो हमारे पास 3 आएगी। इसी तरह
1/5 हम माइनस करेंगे जो कि न्यू रेशो है 1/4 से, तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 ही आता है। तो लिहाजा हमारी सेक्रीफाइस रेशो भी 3:1 है, यानी 3/4 1/4। अब 3/4 और 1/4 के हिसाब से हम ये 9600 तकसीम करेंगे हाशिम और कासिम के दरमियान, ये 3/4 और इसका रेशो होगी 9600 ज़रबे 1/4। ये हमने इस तरह यहाँ पे करनी है कि 9600 ज़रबे 1/4। अब 9600 का 1/4 3/4 लेते हैं, नौ हजार 600 तकसीम 4 ज़रबी 3, तो ये बनता है 7200। तो गुडविल में कासिम का जो हिस्सा बनता है अकबर का वो 7200 है, और बाकी 9600 में 2400 बच जाता है कासिम का हिस्सा, यानी अकबर का हिस्सा 3/4 के हिसाब से सेक्रीफाइस के हिसाब से 9200, और कासिम की जो कैपिटल है वो उसमें 2400 गुडविल का हिस्सा जो है वो जाएगा। तो ये हमारी पहली केस हुई एक्सरसाइज नंबर 1 की, जिसमें हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की, कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर की, और सेटलमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में दिए था कि वो अपनी गुडविल इन कैश लाता है, तो आपने जब गुडविल कोई भी पार्टनर यानी न्यू पार्टनर कैश में लाता हो तो आपने लाजमी ये 2 एंट्रीज करनी है, कैश अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट क्रेडिट, फिर गुडविल अकाउंट डेबिट कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट विद सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो बराबर है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है तो आपने इस तरह मालूम करनी है, और अगर गिवन है तो फिर यहाँ पे आप सिंपली उसको माइनस करेंगे। इसको ज़रा मैं रखने देता हूँ, आप देख लें, नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। फिर आगे दूसरे स्टेप पे जाते हैं जो कि हमारी इस क्वेश्चन का पार्ट 2 है। अब सेकंड पार्ट में हमने अगेन जर्नल एंट्रीज पास करनी है, लेकिन उसमें ये था कि दूसरे केस में ये है कि ही इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, यानी क्वेश्चन में देखिए ही इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर गुडविल एंड हेंस इट इज रेज्ड इन द बुक्स, यानी जो न्यू पार्टनर है हाशिम, ये गुडविल जो इसके हिस्से का बनता है वो कैश में नहीं ला सकता, और जब वो कैश में नहीं ला सकता तो फिर आपने गुडविल को बुक्स में रेज करनी है। तो बुक्स में रेज करने का जो प्रोसेस है वो आपने इस तरह करना होगा। पहली एंट्री कॉमन होगी जो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर की है, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कैपिटल हाशिम क्रेडिट 30,000। ये हो गई रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर। दूसरी एंट्री जो कि अब गुडविल की है, और उसमें हम एंट्री करेंगे चूंकि अब गुडविल कैश में नहीं रहता और उसको हमने बुक्स में रेज करना है, तो रेज की एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट कैपिटल ऑफ अकबर
क्रेडिट और 7 कैपिटल ऑफ कासिम क्रेडिट। अब गुडविल रेज जब होगी तो फुल वैल्यू ऑफ द गुडविल जो कि फर्म की बनती है उससे रेज होगी और वो हमें गिवन थी 48,000, यानी इससे हम गुडविल डेबिट करेंगे और ये गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कासिम और अकबर के दरमियान ऑन द ओल्ड रेशो 48,000 ज़रबे 3/4 और इस तरह 48,000 ज़रबे 1/4 के हिसाब से। अड़तालीस हजार डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इस तरह अकबर का हिस्सा बनेगा 36,000 और कासिम का 1/4 के हिसाब से 12,000 बनता है। इसको कहते हैं गुडविल रेज्ड। आप अगर नरेशन लिखना चाहें, गुडविल रेज्ड इन द बुक्स, तो ये गुडविल रेज्ड हो गई। तो रेज का मतलब कि ओल्ड पार्टनर्स अपने लिए जितनी गुडविल ऑफ द फर्म बिफोर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर बनती है उसका फायदा अपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो यहां अगर आप देखें, अगर वो कैश में लाता, जिस तरह ये केस था कि उसने कैश में अपने हिस्सा लाया तो हमने उसका हिस्सा उस 48,000 में मालूम किया और फिर वो हिस्सा उसने ओल्ड पार्टनर में तकसीम कर दिया, यानी कैश में लाया और हमने उसको तकसीम किया। लेकिन जब वो ला नहीं सकता तो फिर आपने ये तरीक़ेकार है गुडविल की, ये ट्रीटमेंट है कि जब वो कैश में नहीं ला सकता तो फिर आपने गुडविल रेज की एंट्री करनी है और एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर अकाउंट क्रेडिट ओल्ड रेशो से। यह आपने गुडविल रेज इन द बुक विद एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विद ओल्ड रेशो। इस तरह ये तकसीम हुआ ओल्ड रेशो की निस्बत से। ये आपने इस तरह गुडविल रेज करनी है। ये हमारा दूसरा केस हुआ। अब ये सिंपल है, सिर्फ हमने कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड की, कैश और कैपिटल, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और फिर गुडविल वो कैश में नहीं ला सकता तो एंट्री की गुडविल अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स क्रेडिट। अब केस नंबर 2 में और केस नंबर 1 में सिमिलरिटी क्या है? ये सिमिलरिटी है, ये एंट्री वहां नहीं है क्योंकि वहां कैश गुडविल नहीं है, सिर्फ गुडविल रेज है। लेकिन गुडविल रेज कैश वैल्यू से नहीं बल्कि फुल वैल्यू से आपने करनी है। इस तरह हमने 48,000 से गुडविल जो है वो रेज की। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, पहले एक्सरसाइज को गौर से देखिए, फिर उसमें आपसे जो रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक आपने उसको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज नंबर 2 में कहता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फैसल एंड कैसर हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेस्पेक्टिवली इज ऑन 31 दिसंबर। फैसल और कैसर दो पार्टनर हैं, उनके दरमियान उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 है। ये ओल्ड रेशो है 2:3, ये नोट कर लें। उनका जो बैलेंस शीट था, मतलब उनकी जो पार्टनरशिप थी, उनका ये पोजीशन था, कैश थी 5,000, अदर एसेट्स थी 55,000, टोटल एसेट 60,000 की, लाइबिलिटीज 10,000 की थी, कैपिटल फैसल 30,000 की थी और कैपिटल कैसर उसकी 20,000 है। नासिर वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन दिस डेट।
इस तारीख को नासर जो है वो एडमिट हुआ एज अ पार्टनर. ही वॉज गिवन 1/6 शेयर्स इन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म. और उसकी एडमिशन कैसी हुई कि उसी कारोबार में 1/6 हिस्सा दिया गया और उस 1/6 हिस्से के लिए वो मंदरजेर शराइत के मुताबिक अदायगी करेगा. क्या करेगा? नंबर 1, ही विल पे Rs 12,000 एज कैपिटल. वो 12,000 सरमाया देगा, कैपिटल की शक्ल में देगा. और 2 नंबर है, ही विल पे 10,000 एज गुडविल, और वो 10,000 रुपया गुडविल की शक्ल में अदा करेगा. तो आसान बात हुई, एक कैपिटल की अदायगी करता है और दूसरी गुडविल की अदायगी करता है, यानी अपने हिस्से का जो गुडविल उसका बनता है वो कैश में देता है. तो हम एक्सरसाइज नंबर 1 में केस नंबर 1 की तरह सेम एंट्रीज करेंगे, लेकिन सर अब यहाँ पे अमाउंट्स मुख्तलिफ होगी और नाम मुख्तलिफ होंगे. रिक्वायर्ड है प्रिपेयर द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म. और इस क्वेश्चन में हमने फर्म का बैलेंस शीट भी बनाना है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट पहले से गिवन थी और अब न्यू बैलेंस शीट हम आफ्टर एडमिशन ऑफ नासिर जो है वो दोबारा से ड्राफ्ट करेंगे. 2 एंट्रीज हमने करनी है. ट्रीटमेंट रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी मालूम करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन है और साथ न्यू पार्टनर की रेशो गिवन है. ओल्ड पार्टनर की न्यू रेशो हमें गिवन नहीं है, इसको हमने फाइंड आउट करना है. ये हमारे सामने जर्नल है. अब इसमें हम एंट्रीज करेंगे. तो ये हमारे साथ डेट बनती है 31 दिसंबर. 31 दिसंबर को हम एंट्री करेंगे रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर के लिए. कैश अकाउंट डेबिट, चूंकि वो 12,000 कैश लाता है उसको हम इंटर करेंगे, डेबिट करेंगे. और किस लिए लाता है? कैपिटल फैसल है ये. कैपिटल फैसल क्रेडिट होगी 12,000 से. ये हो गई रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर. अब इसी डेट को दोबारा हमारे पास एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट और उसकी अमाउंट है 10,000. यानी 2 तरह की वो अदायगी करता है. एक अदायगी वो करता है एज अ कैपिटल और दूसरी अदायगी करता है वो एज अ गुडविल. तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट 10,000. इसके लिए हम कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं एक, और वो इस तरह होगी कि कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल ऑफ फैसल क्रेडिट, और गुडविल अकाउंट क्रेडिट, वो भी साथ यहाँ पे इसके साथ क्रेडिट होगा. तो इसका मतलब ये हमें वो 2 किस्म की अदायगी करता है. एक कैश आता है कैपिटल के लिए, तो टोटल अदायगी होती है 22,000 की. ये जस्ट आपको समझाने के लिए करता हूं. इसमें कैपिटल का अमाउंट 12,000 है और 10,000 अमाउंट जो है वो गुडविल का है. तो ये एक एंट्री, यानी ये 2 एंट्रीज आप इस तरह कंबाइन भी कर सकते हैं. यानी एक मर्तबा कैश डेबिट होगी, क्योंकि दोनों सूरतों में कैश ही डेबिट होता है, और फिर उस कैश की डेबिट होने की वजह जो है एक कैपिटल फैसल है और दूसरी गुडविल है. यानी एक कैश की अदायगी वो कैपिटल के लिए करता है और दूसरी कैश की अदायगी वो गुडविल के लिए करता है. तो हम रिसीव करते हैं कैश, तो कैश डेबिट, कैपिटल फैसल क्रेडिट, फिर कैश डेबिट, गुडविल क्रेडिट. मैं इसको वापस सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने इसको यहाँ लिखा, ताकि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं. अब ये हमारी आ गई कैश गुडविल. अब ये गुडविल हमने पार्टनर के दरमियान तकसीम करनी है. एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट,
कैपिटल हमारे पास पार्टनर थे, सारी हमारा जो नया पार्टनर आ रहा है ये नासिर है, फैसल नहीं है। और ये हमारे पास कैपिटल फैसल है, और दूसरा हमारे पास है कैपिटल कैसर। अब गुडविल हमारे पास आती है 10,000। ये 10,000 अब हमने इनके दरमियान तकसीम करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। अब यहाँ पे हमारे पास इनकी सैक्रिफाइस रेशो हमने फाइंड आउट करनी है, और इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू। तो लिहाजा सैक्रिफाइस रेशो के जरिए अब ये 10,000 हमने कैपिटल मतलब फैसल और कैसर के दरमियान तकसीम करनी है, और वो अमाउंट उसकी कैपिटल में क्रेडिट करनी है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास सैक्रिफाइस रेशो मालूम करने के लिए हम ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करेंगे। ओल्ड रेशो हमें गिवन थी क्वेश्चन में 3:2, तो इसका मतलब 3/5 2/5 माइनस न्यू रेशो हमारे पास नहीं है। इसके लिए हम ये वर्किंग करते हैं न्यू रेशो के लिए। हमारे पास न्यू रेशो बराबर हुई, अगर हम मालूम करना चाहें तो लेट सपोज हम टोटल शेयर ऑफ द फर्म 1 लेते हैं, फिर उसमें से लेस करते हैं शेयर गिवन टू नासिर जो कि हमारा न्यू पार्टनर है, उसको जो हिस्सा हम देते हैं वो 1 में से माइनस करेंगे। तो क्या लिखेंगे 1 - 1/6। अब 1 - 1/6 जब लिया जाता है तो इसका बाकायदा हम एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आएगा 5/6, यानी 6 टोटल हिस्से हैं, उसमें एक हिस्सा जाता है हाशिम को, नासिर को, बाकी 5/6 हिस्से रहते हैं जो कि हमने अब तकसीम करने हैं कैसर और फैसल के दरमियान। तो लिहाजा इसमें अब शेयर आप फैसल मालूम कर लेंगे, यानी फैसल शेयर मालूम करेंगे और कैसर शेयर मालूम करेंगे। तो 5/6 में फैसल को जो हिस्सा मिलना है वो 3/5 जो कि इसका होल्ड रेशो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से मिलेगा। तो ये 15/30 आता है। 5/6 जो कि हमारा रिमाइंडर है उसमें कैसर को हिस्सा मिलेगा 2/5 जो कि इसका होल्ड रेशो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके हिसाब से, तो ये 10/30 बनता है। इस तरह नासिर जो हमारा न्यू पार्टनर है उसको हम हिस्सा देते हैं 1/6, और 1/6 बराबर है 5/30 की, यानी अगर 5/30 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 आता है। या इसको हम इस तरह करते हैं कि 5 10, तो 5 और 10 25, तो बाकी रह जाते हैं 30 में कितने हिस्से 5, तो 5 किसके हो गए, नासिर के हो गए, यानी 1/6 या 5/30 ये बराबर है। तो लिहाजा हमारी अब रेशो बनती है 15 10 और 5। ये सब 5 पे इक्वल तकसीम हो सकते हैं। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 से, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। हमारा टोटल जो अब रेशो न्यू बन गई वो 3/6 2/6 और 1/6, यानी 3 2 5 और 1 6। तो लिहाजा अब हम माइनस करेंगे 3 और 6 क्योंकि ये न्यू रेशो है, और माइनस करते हैं 2/6। 3/5 माइनस 2/6 और 2/5 माइनस 2/6। तो हमारे पास अब इनकी जो सैक्रिफाइस रेशो मालूम होगी वो कुछ यूं होगी कि हम 3/5 में से 3/6 माइनस करेंगे, तो इसका जो कॉमन फैक्टर बनता है 5 और 6 का डिवाइडर वो 30 बनता है, यानी 30 ऐसी फिगर है जो कि 6 पे भी डिवाइड होती है और 5 पे भी डिवाइड होती है। तो लिहाजा अगर 30 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो 6 आएगा, तो 6 3 18 माइनस अगर 30 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं 6 पे डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा माइनस 15, तो हमारे पास बराबर होगा 3। इसी तरह फिर इसका कॉमन फैक्टर जो है वो 30 है। 30 को हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो 5 पे डिवाइड करते हैं तो 6 आएगा, और 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस, और
30 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो 5, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 10, तो ये हमारे पास 2 आएगा। तो हमारी सेक्रीफाइस रेशो बनती है 3:2। तो 3:2 मीन्स 3/5, 2/5। इस प्रोसेस को आप बाकायदा तौर पर यहाँ, चूंकि मैं स्लाइड्स में कंप्यूटर के जरिए लिखता हूँ, वो प्रोसीजर में नहीं कर सकता। आप बाकायदा तौर पर जब आप अपने लिए वर्किंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इसका बाकायदा तौर पर मेथ्स के हिसाब से एलसीएम लेंगे, उसी से आपने ये फाइंड आउट करनी है। तो लिहाजा ये हमारी सेक्रीफाइस रेशो हो गई 3/5 और 2/5, चूंकि ओल्ड रेशो के बराबर है। लेकिन आपने ये कंसीडर नहीं करना कि बस हमने ओल्ड रेशो लगानी है। हो सकता है वो सेक्रीफाइस रेशो कम भी हो, ज्यादा भी हो, या ओल्ड रेशो के बराबर भी हो, लेकिन आपने प्रोसीजर बाकायदा करनी है और आपने रेशो मालूम करनी है। अब फैसल का इसमें हिस्सा 3/5 के हिसाब से बनता है 10,000 ज़रबे 3/5, ये बनता है 6,000, और बाकी 4,000 जो है वो कैसर का होगा। तो लिहाजा अब ये 4,000 और 6,000 अमाउंट कैपिटल कैसर के साथ फर्दर जो है हम आगे इसको ऐड करेंगे। ये थोड़ी एडजस्ट करनी है एनी अमाउंट को। जी, तो लिहाजा अब ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई। अब इन एंट्रीज के बाद हमने इस फर्म की दोबारा से बैलेंस शीट ड्राफ्ट करनी है, जो कि एडमिशन ऑफ नासिर की वजह से अब उसमें चेंजेस होंगे। तो देखते हैं बैलेंस शीट को। हमारे पास ये बैलेंस शीट है इस फर्म का एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ये मैंने 2019 वैसे अपनी तरफ से लिखा है। एक तरफ इसकी एसेट्स है, दूसरी तरफ इक्विटीज है। सबसे पहले हम उस बिजनेस की एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स में हमें गिवन थी उसकी ओल्ड बैलेंस शीट में कैश और अदर एसेट्स। अब कैश हमें वहां गिवन थी, अगर आप क्वेश्चन को जाके देखें 5,000 गिवन थी, और अदर एसेट्स 55,000 गिवन थी। लेकिन अगर हम जर्नल पे आ जाए तो जर्नल में हमारे पास यहाँ कैश एक मरतबा डेबिट है 12,000 से, और दूसरी मरतबा हमारे पास डेबिट है 10,000 से। तो इसका मतलब हमारी जो कैश है, कैश अकाउंट है, उसमें 22,000 की इंक्रीज हुई है। तो लिहाजा हमारी एसेट्स यहाँ पे टोटल अब कैश की सूरत में हुई है 27,000, यानी 22,000 न्यू कैश और प्लस 5,000 ओल्ड कैश, ये टोटल हमारी 27,000 की कैश है। अब अदर एसेट्स वो वही 55,000 की होगी, क्योंकि जर्नल में इसके बारे में कुछ डेबिट और क्रेडिट नहीं है। मतलब ये हमें जर्नल में हमें उसके बारे में कुछ डेबिट्स नहीं है, उसमें कमी बेशी नहीं हुई। इक्विटी साइड पे हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज थी। लायबिलिटीज भी हमारे पास सेम है, उसमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ। यानी अगर आप जर्नल में देखें तो कैश है, कैश है, कैश है, गुडविल है और कैपिटल्स है। तो लिहाजा गुडविल एक मरतबा डेबिट है, दूसरी मरतबा क्रेडिट है, तो क्रॉस ये बैलेंस हुआ। बाकी जो कैपिटल अकाउंट्स है उसमें हम चेंजेस देख सकते हैं। एक है हमारे पास कैपिटल फैसल, मैंने एफ लिखी, और कैपिटल फैसल हमारे पास पुरानी अमाउंट जो थी वो अगर आप क्वेश्चन में देखें वो 30,000 थी। ये अब ये 30,000 नई बैलेंस शीट में, चूंकि इसमें ये 6,000 मजीद क्रेडिट हुई है, ये हम उसके साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल फैसल जो होगी
وہ 36,000 ہوگی کیونکہ اس میں 6,000 کا اضافہ ہوا. دوسرا ہے کیپٹل قیصر، میں نے کیوں لکھا آسانی کے لیے. اس کی پرانی کیپٹل ہماری بیلنس شیٹ میں تھی 20,000. اب 20,000 میں یہاں اگر ہم دیکھیں تو کیپٹل قیصر کریڈٹ ہے 4,000 سے، مطلب 4,000 کا اضافہ ہوا ہے، تو ہم بیلنس شیٹ میں اس کو لکھیں گے 24,000 سے. 20,000 جمع 4,000. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک نئی کیپٹل آ گئی کیونکہ ہم نے ایک نیا پارٹنر جو ہے وہ ایڈمٹ کیا، اور وہ ہے کیپٹل ناصر کی. تو لہٰذا ہم ناصر کی کیپٹل یہاں پہ مینشن کریں گے جو کہ پہلے نہیں تھی، اور وہ 12,000، اور اس کے لیے ہم نے انٹری کی تھی کہ کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیپٹل ناصر کریڈٹ 12,000. یہ ہماری بیلنس شیٹ ہوگی. اس طرح یہ بیلنس شیٹ ہم نے اب ٹوٹل کرنی ہے. ساری ٹوٹل کی لائن موجود ہے. تو ٹوٹل میں ہم یہاں پہ لکھیں گے 55,000 اور 27,000 کو ہم جمع کریں گے. یہ ہمارے پاس ہو جائے گی 82,000 ٹوٹل ایسٹس. اسی طرح ہمارا 10,000 36,000 24,000 اور 12,000 یہ بھی 82,000 ہونا چاہیے. اس کو کمپیئر کرتے ہیں 10,000 36,000 24,000 اور 12,000. تو یہ 82,000 ہماری ٹوٹل ایسٹس ہے اور 82,000 ہماری ٹوٹل لائبلٹی ہے. تو یہ ہماری ایکسرسائز نمبر 2 تھی جس میں ہم نے ٹریٹمنٹ آف گڈ ول، ریکارڈنگ دا کنٹریبیوشن آف نیو پارٹنر اور سیٹلمنٹ آف نیو پروفٹ شیئرنگ ریشو ڈسکس کی. ان ایکسرسائزز کو آپ اپنی ایکسرسائزز جو آپ کی بک میں ہیں ان سے دوبارہ آپ گھر میں پریکٹس کرائیں. آپ کو اگر اس میں کوئی پرابلم ہو، مشکل ہو، سمجھ نہیں آئی ہو تو باقاعدہ طور پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جس چیز کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو آپ کالج بھی آ سکتے ہیں. تھینک یو فار بینگ ود می. انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم دوبارہ باقی ایکسرسائز 3 اور 4 جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کی ریلیٹڈ ایشوز میں کو انشاءاللہ یہاں پہ ہم سالو کریں گے. تھینک یو.